Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum Mahnoor. How are you beta? I'm fine. Okay beta. ये अब जो है हम बेटा इसका एक पेपर 6 करते हैं या पेपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पेपर 2 करते हैं. ठीक है. यस दिस इज पेपर 2. ओके. फिगर 4.1 and figure 4.1b each shows cells from the lining of the trachea. ठीक है. दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये लेक्चर लिया था दे वुड बी एबल टू आंसर figure 4.1. this is figure 4.1a and this is figure 4.1b. ये आप देखें. ठीक है. they have shown you this is the trachea and these are the cells of the trachea. ये अंदर trachea आपको दिखाया हुआ है. one is from a smoker, one is taken from a smoker and one is from a non smoker. अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा जो है इज फ्रॉम स्मोकर एंड विच वन इज फ्रॉम नॉन स्मोकर. वैसे आप जनरली मुझे बताएं दिस इज फ्रॉम स्मोकर और बी इज फ्रॉम स्मोकर. वन इज फ्रॉम स्मोकर एंड अदर इज फ्रॉम नॉन स्मोकर. तो आप बताएं इसमें स्मोकर में से कौन सा है. बी इज फ्रॉम स्मोकर. यस गुड मानूर. Yes, B is from smoker. इसमें आप देखें बेटा this is the mucus production and mucus production has been increased into the smoker. अच्छा, when more mucus will be produced, what will happen? जो इसका बेटा diameter होता है, diameter will be reduced और diameter कम होने की वजह से bronchitis हो जाएगा, right? And bronchitis की वजह से again जो है respiratory disorders के symptoms होंगे. अच्छा, let's identify structures D and E. What are the structure D and what is the structure E? Very simple. D क्या चीज है? These are hair-like structures and hair-like structures in the trachea are, what are the hair-like structures in trachea? These are cilia. Hair-like structures are cilia. So D is, oh let me, hair-like structures are cilia, right? So D जो structure है, this is the, this one, these are the cilia, hair-like structures. What is E present? What is E? E मैंने आपको बताया था ये वाले जो बेटा cells हैं, these are the epithelial cells. These are epithelial cells. अच्छा, these are epithelial cells and epithelial cells के बीच में हमें क्या मिलता है? इसमें हमें बेटा एक different cell मिलता है, this one. इसको हम बोलते हैं this is the goblet cell. This is the goblet cell and what is the purpose of the goblet cell? हमें diagram में भी visible है. Goblet cells they secrete mucus. They produce mucus, right? Your goblet cells they produce mucus and these are the epithelial cells. अच्छा, यहाँ पर आप goblet cells mention कर दें. E जो है these are the goblet cells or you can also write down mucus producing cells. अच्छा, अब आप मुझे बताएं what is the function of the D? D क्या है? cilia है. What is the function of the D? cilia क्या करते हैं? अच्छा, सिलिया जो है बेटा वो ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, राइट? और क्या करते हैं? दे विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स. इनकी जो बीटिंग मूवमेंट होती है, ठीक है, बीटिंग मूवमेंट it will sweep dust and mucus or you can say trapped bacteria upward into the esophagus. They will trapped bacteria upward
into esophagus. राइट? अच्छा, ये बेटा क्या करेंगे? स्वीप करेंगे, मूव करेंगे सिलिया एंड दे विल प्रोपेल इफ एनी ऑफ द बैक्टीरिया एंड डस्ट इज ट्रैप इनटू द ट्रेकिया, तो वो उसको प्रोपेल करके इसोफेगस में सेंड कर देंगे. राइट, 2 मार्क्स आर सफिशिएंट फॉर दिस. चलें, अभी हमने एक डिजीज की है और आपने मुझे बताना है, कैन यू सी दिस इज इनसाइड ऑफ द लंग्स और दीज आर द वॉल्स ऑफ द एल्वुलाई. अंदर आप देखें, ठीक है. एक हमारे पास फिगर 4.2a है और एक जो है फिगर 4.2b है. Figure 4.2a and figure 4.2b show cross sections through the alveoli of smoker and non-smoker. ठीक है, this is one of them is of smoker and one of them is of non-smoker. So beta please बताएं आप which one is from smoker and which one is of the non-smoker. Figure 4.2 is of smoker or figure 4.2a is of smoker or figure 4.2b is of smoker. A is of smoker. Yes, good. What is the reason, Mahnur? What is the reason? Can you see its alveolar walls? Yes, good. ठीक है, they have the less foldings. They have less foldings. Figure this and figure this we have to identify. Show the trachea and alveoli of the smoker. Identify the figure on this page that shows the. Okay. अच्छा, इसमें जो है बेटा you have to identify on this. Okay, either आप you can identify on any of the picture this or this, which one is the alveoli and what are the trachea and the alveoli of the smoker. जो है हमने in any of the picture जो है वो हमने यहाँ पर लेबल करना है. So these जो foldings हैं these are the alveoli, right? और इसमें जो है ओके इसके ऊपर आप बेटा लेबल कर दें, इसके ऊपर लेबल कर दें बोथ आर एक्सेप्टेड. आपने ट्रेकिया को और एल्वुलाई को करना है. दीज आर द एल्वुलाई और ट्रेकिया जो है, कैन यू सी एनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड दिस? ठीक है, ट्रेकिया जो है वो भी हम एनी पिक्चर के ऊपर वी कैन लेबल वेयर यू कैन फाइंड आउट द ट्यूब्स. ठीक है, ट्रेकिया को भी हम यहीं पर ही लेबल कर देते हैं. इनसाइड है और ट्रेकिया इनसाइड से जहां से ये ट्यूब ओरिजिनेट हो रही है कहीं पर भी वी कैन फाइंड आउट और वी कैन लेबल द ट्रेकिया. ओके चले नेक्स्ट जो है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द एल्वुलाई. Alveoli could affect the general health of the smoker. Smoking के effects चलें, we have not studied this, we will study this in smoking or drugs. ठीक है, वहां पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे. Let's do few MCQs. जो हमने टॉपिक स्टडी किए हैं उससे रिलेटेड जो है बेटा हम कुछ एक MCQs भी करते हैं. अच्छा ओके यस आई थिंक वी विल बी एबल टू आंसर दिस. अच्छा इसमें देखिए बेटा, the graph shows changes in the air pressure within the lungs during one breathing cycle. Okay. अच्छा इसमें आप देखें कि बेटा जो प्रेशर है दिस इज 100 किलो पास्कल और दिस इज द प्रेशर इनसाइड द लंग्स. अब आप देखें कि प्रेशर इज बीइंग इंक्रीज्ड और इस साइड पे दिस इज बीइंग डिक्रीज्ड और ये गया स्टेजेस इन ब्रीदिंग साइकिल और ये आपको प्रेशर दिखाया हुआ है. पहले आप देखें कि प्रेशर बेटा 100 है. 100 से प्रेशर क्या हुआ है, इस यहाँ पर देखें इस वाले पॉइंट पर प्रेशर हैज डिक्रीज्ड. कैन यू सी हियर प्रेशर जो है इट हैज ड्रॉप्ड डाउन और इट हैज डिक्रीज्ड. अच्छा उसके बाद अब आप देखें कि इट हैज अगेन इंक्रीज्ड टू 100 हो गया. अच्छा उसके बाद अब आप दोबारा यहाँ पर देखें इट हैज अगेन इंक्रीज्ड. ठीक है, इट इज इंक्रीज्ड इवन अबव 100, इंक्रीज हो गया. उसके बाद अगेन इट हैज ड्रॉप्ड डाउन. What causes a change in the pressure during the stage X? During stage X आप बेटा बताएं
ठीक है, ये देखें, पहले आप देखें प्रेशर ज्यादा हुआ है, देन प्रेशर हैज रिड्यूस्ड। प्रेशर किसकी वजह से कम हुआ है? यू आर सेइंग रिलैक्सेशन। ओके, अच्छा, और इसके अलावा what causes the change in air pressure during stage x? This is the stage x. अच्छा, x में आप देखें बेटा, यहाँ पर प्रेशर जो था that was increased up till this point, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक जो है बेटा प्रेशर जो है इट वॉज हाई, और उसके बाद ये कम हुआ है। तो प्रेशर जब कम होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ तक ये बात ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये सेकंड देखें आगे, यहाँ पर स्टिल दिस इज इंक्लूडेड इनटू द एक्स, उसके बाद प्रेशर जो है वो कम हो गया है। व्हाई इज इट सो? आप देखिए 100 पर जो है व्हाट हैपन के, अच्छा आप यू आर सेइंग डायफ्राम, डायफ्राम इज दिस इज कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम मसल्स। अच्छा, यहाँ पर जो है बेटा प्रेशर हैज बीन ड्रॉप, इजंट इट बिकॉज ऑफ द आउटफ्लो ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स? एक तो मसल्स की मूवमेंट की वजह से था ना, मसल्स की मूवमेंट की वजह से आप देखिए कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम मसल्स। अच्छा, डायफ्राम मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? इट विल बी लोअर्ड, ठीक है, हाई टू प्रेशर जो है, यू आर सेइंग कि प्रेशर वाज हाई एंड इट हैज ड्रॉप्ड डाउन। अच्छा नहीं, यहाँ पर आप देखें कि जब बेटा प्रेशर हाई होता है, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, प्रेशर हाई का जो है उसके बाद प्रेशर हैज बीन ड्रॉप्ड डाउन। ये जो हाई हुआ है दैट वाज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ठीक है, देखें जब डायफ्राम बेटा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो व्हाट हैपेंस, एरिया इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। डायफ्राम मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, एरिया विल इंक्रीज एंड द प्रेशर विल डिक्रीज, ये वो वाला प्रेशर है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि व्हाट हैपेंड कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम मसल्स दे रिलैक्स्ड, ठीक है, और रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, जब प्रेशर हाई होता है, ठीक है, एट दिस पॉइंट व्हेन द प्रेशर इज हाई इनसाइड, तब क्या होता है बेटा, जो डायफ्राम मसल्स हैं दे रिलैक्स। अच्छा, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट। हमने एक्सलेशन पढ़ी थी ना, उसमें प्रेशर जो है दैट इज हाई इनसाइड द लंग्स, तो ये वो है। तो ये दो ऑप्शंस यहाँ पर जो है, यहाँ पर या द वन विच आई हैव हाईलाइटेड ग्रीन, जो ग्रीन मैंने पार्ट हाईलाइट किया है, यहाँ पर जो है ये वाले 2 पॉइंट्स एक्सक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, प्रेशर हाई था, राइट, अच्छा उसके बाद जो है प्रेशर हैज बीन रिड्यूस्ड, कम हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, ये पॉसिबल है, ठीक है, इंक्रीज हो सकता है, बट आप देखें कि हाई के बाद जो है इट इज बीइंग डिक्रीज, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एयर है दैट इज बीइंग प्रोपेल्ड आउट, राइट। तो इसमें जो है दिस प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द, क्योंकि आप देखिए ज्यादा हाई हो गया ना, ज्यादा हाई से व्हेन इट कम्स डाउन, इसका मतलब है कि यहाँ पर व्हाट हैपेंड, यहाँ पर जो एयर है दैट हैज एंड पर, आप देखिए साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, साइकिल हैज कंप्लीटेड हियर, सो एयर इनसाइड दैट हैज बीन फ्लोन आउटसाइड और मूव्ड आउटसाइड, एयर जो थी दैट मूव्ड आउटसाइड, सो दैट्स व्हाई द प्रेशर इनसाइड हैज बीन रिड्यूस्ड। चलें एक और भी हम करते हैं, व्हाट डू द सिलिया डू इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स? What is the function of the cilia in the bronchi of the lungs? अच्छा, do they trap bacteria and do they, what is the, yes beta, what do the cilia do in the bronchi of the lungs? Do they trap bacteria? Yes. Move mucus out of the lungs? Yes. Yes, right, this is correct and this is correct, they do trap the bacteria, ठीक है, and they also move the mucus out of the lungs. So A is the correct answer for this. This is the correct answer, right? So almost बेटा this is okay. एक और भी हम कर लेते हैं. Fitness training increases the concentration of lactic acid that runners can build up in their muscles before. This is before pain stops them running.
What is the consequence of this increase? Why the lactic acid is being increased into the muscles? Aerobic respiration in muscles can be more rapid. Aerobic respiration is more rapid. No, lactic acid is not produced in result of aerobic respiration. Water and carbon dioxide are produced. So this is incorrect. Next, blood flow to the muscles is increased. If the blood flow is increased, it means that the oxygen supply to the muscles is also increased. तो ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो दे विल कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन राइट एंड इन रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड दिस इज अगेन इनकरेक्ट ओके गुड मानू ठीक है डी यू आर सेइंग डी सो लेट्स डिस्कस और लेट्स सी more anaerobic respiration can take place in muscles more energy okay ठीक है more anaerobic respiration can take place more energy is needed by the athletes so what happens more energy is needed okay more energy is needed you are saying D no D is not correct more anaerobic respiration can take place in muscles yes more anaerobic respiration takes place and in result of anaerobic respiration what happens lactic acid is produced inside the body so that lactic acid is accumulated in this energies yes energy तो बेटा इसकी तो जरूरत होती है but उसके साथ साथ aerobic भी हो रही होती है this pain ये जो pain होती है that is because of lactic acid and lactic acid is produced during anaerobic respiration this is because of the lactic acid and lactic acid is produced during anaerobic respiration so C is the correct answer okay let's do the fourth one the following changes take place in an athlete's body during 100-meter race what change occurs first increased availability of oxygen to the muscles increased breathing rate increased carbon dioxide concentration in the blood or increased production of carbon dioxide by muscles 100-meter रेस में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा यू आर रनिंग अच्छा रनिंग में अच्छा यू आर सेइंग बी अच्छा ब्रीदिंग रेट नहीं अच्छा इसमें जो है मैं आपको बता देती हूँ इसमें सबसे पहले बेटा क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं दैट इज क्विकली यूज्ड बाय द सेल्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ठीक है एरोबिक रेस्पिरेशन में व्हाट दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा अब जब वो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द पॉइजनस गैस दिस इज पॉइजनस गैस एंड इट शुड बी this is poisonous gas and it should be quickly removed from the body तो इसको हमने जल्दी रिमूव करने के लिए या इसको बॉडी से जल्दी रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है बॉडी हमारी क्विकली बेटा रिस्पायर करना स्टार्ट कर देती है जल्दी जल्दी ठीक है जल्दी जब हम रिस्पायर करेंगे तो दिस पॉइजनस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी हम बेसिकली जो ब्रीदिंग इंक्रीज होती है वो इंक्रीज होती है फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी उसके लिए इंक्रीज होती है ठीक है ये देखें सबसे पहले तो ये प्रोड्यूस ज्यादा होगी ना ठीक है फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज इट्स मोर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड अच्छा जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होगी उसके बाद ये कहां पर आएगी ठीक है देन इट विल इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन अच्छा देन इट विल देन डिफ्यूज इनटू द ब्लड ये ब्लड में डिफ्यूज इन हो जाएगी ठीक है अच्छा उसके बाद जब ये ब्लड में आएगी तो दैट ब्लड विल पास फ्रॉम द ब्रेन और ब्रेन इसको डिटेक्ट करेगा मैसेज विल बी सेंट टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन अगेन द मैसेज इज सेंट टू द मसल्स ऑफ द रिब्स डायफ्राम ठीक है वो क्या करते हैं वो बेटा क्विकली ब्रीदिंग स्टार्ट कर देते हैं क्विकली ठीक है देयर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज इंक्रीज्ड जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट इज इंक्रीज सो दिस इज ऑन द थर्ड नंबर increased availability of oxygen to the muscles availability तो ये बेटा बाद में होगी ना इसके बाद when we will breathe then we will respire deeply breathing rate जब ज्यादा होगा तो more oxygen will diffuse inside and then little more oxygen is supplied to this so this will be on fourth number so the correct answer is first is the more production of carbon dioxide this is the correct answer
राइट। चलें बेटा, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके जो हम पेपर 6 भी सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है रेस्पिरेशन में, राइट। अच्छा, एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ और यू वांट टू आस्क समथिंग और यू वांट टू गिव एनी सजेशन, बेटा यू कैन गिव अस योर फीडबैक। ठीक है, टीचिंग में, इसमें स्टडी में आपको कोई इशू आ रहा हो, यू कैन गिव अस योर फीडबैक ऑन द tutorial.com। चलें, ठीक है बेटा, right? I'm going to sign out. Take care. Allah Hafiz.